today we'll be discussing about law of contracts. Law of contracts has been there in this entire Indian subcontinent and the Western subcontinent, and it was though not codified. So the basic genesis of Indian Contract Act, which is present 1872, can be traced from European law. As I discussed yesterday also, the entire Indian law, Hindustan mein jo bhi कानून है, it's completely, this genesis comes from the European law. Whatever used to happen there, whatever the transaction used to be there, they tried to implement in the Indian scenario. So doing so, हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोई स्पेशल रजीम नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट का कोई स्पेशल लॉ नहीं था, कोई कोडिफिकेशन नहीं था, बट दे एट दैट टाइम हैड एन इन माइंड हाउ टू डील विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. So as you all know, 1600 में in around 1600, the company which came to India was East India Company. वो सब merchants थे. उनका life का एक ही trading was their ultimate aim, though it change into conquering this entire nation and making it an English colony. But the primary aim was to do trading. जब आप trading के thought process से आते हो तो आप contracts को लेके आते हो. So the entire genesis of Indian contract is very much important. क्यों? Because for the reason that the entire East India Company was a trader, and the kind of thing they had was a contract. They came in India to trade, and trade is related to contract. Without a contract, without having a contract in motion, you cannot do trade anywhere. Now the contract can be a verbal one and an written one also. पहले वर्बल ज्यादा चलते थे हमारे यहाँ पे, जबान की बात है, बहुत लोग आप सुनते होंगे ये हमने जबान दे दी कि हम इतने में ही देंगे, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा थे. Later on, because verbal contracts are very difficult to prove, और वो सिर्फ एक्शन से प्रूव हो सकते थे. So looking to that very aspect, the people started writing them down, jotting them down कि okay, these will be the terms and conditions of the contract. Therefore we written contracts came into picture, क्योंकि then you have a proof, you have a documentary proof saying कि सर ये इसने इस terms and condition पे things were being decided. Now आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब पढ़ोगे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते वक्त यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंटरप्रिटेशन क्लॉज ही उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि उसी के अंदर ही सब कुछ आ जाता है. फॉर एन एग्जांपल, इफ यू सी सेक्शन 2A of the Indian Contract Act, okay, that is offer. Then you have section 2H, then you have section 2D. When you go for these sections, what happen is कि आप इसमें इस पूरे section 2 के अंदर of the Indian Contract Act, you will be able to find that okay, Indian Contract Act is very much divided into its own section 2 only. Why? क्योंकि आपको वहाँ पे contract की definition दी हुई है. You have a definition of consideration, you have definition of offer. So when I discuss about what is interpretation, what is contract, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? What is contract? When you go for what is contract, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है 2H में, जो ये कहता है agreement enforceable by law is a contract. When I, please Bhuvnesh, confirm whether you are able to see the white screen also whenever I am sharing it. Okay. So yes. Indian, okay. So Indian Contract Act जो है वो 2H में कहता है that this Indian Contract Act, okay, the Indian Contract Act says 2H के अंदर कि what is contract? Contract Act is, what is contract का मतलब agreement enforceable by law is contract. When you say agreement enforceable by law, that means that it has to be an agreement. Now go to the definition of agreement which is given in section 2E. When you go for the definition of agreement in section 2E, you see that agreement has to be between two parties, where one party makes an offer, other party accepts the offer, and then terms and conditions are settled, and therefore agreement comes into picture. When agreement comes into picture, you have to see, then you have, when you go through section 2E, 2E में जब आप देखते हो तो वहां पे दो वर्ड्स होते हैं, offer, acceptance. जब आप ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ते हो तो ऑफर दिया हुआ है सेक्शन 2A में. सेक्शन 2A कहता है
जब भी किसी को कोई काम कराना हो, whenever someone has something to offer to someone, that okay, they want this thing to be done, they don't want this thing to be done, they want to avail any service or purchase any goods, so they make an offer. Okay, this very particular thing, this very particular service we need, therefore we are making an offer that okay, if we want these services, avail our services for so on so and so terms. When you do this, you make it public. Okay, this is our offer. When this the offer comes into picture, what you do is a second party comes and accept that offer. That is known acceptance. आपको किसी ने offer किया कि I want to sell this car. That is an offer. Selling, giving an offer to sell a car comes into 2A. But now you go and say yes, I want to buy that car. Comes into 2B. You come to an acceptance mode. You accept it. Now when you come to offer and acceptance, what happen is कि जब भी आप offer and acceptance की बात करोगे, आपने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, यस मैं खरीदना चाहता हूँ, तो ऑफर के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है. व्हेन यू एक्सेप्ट, यू आर एट योर लिबर्टी टू गिव पुट सम मोर टर्म्स एंड कंडीशन. वो टर्म्स एंड कंडीशन, इफ बोथ द पार्टीज एग्री, फॉर्म एन एग्रीमेंट. नाउ अब एग्रीमेंट तो किसी को मारने का भी हो सकता है. मैं आपको बोलूं कि आप किसी को मार दो, आप कहो ठीक है मार दूंगा, आप ऐसे मार दो, हाँ ठीक है, मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे मारूंगा, ये भी तो एग्रीमेंट पे रीच कर रहे हो, बट दिस इज नॉट लॉफुल. So these are void contracts. Okay. But when I'm selling a car which is under my possession, which is under my name, I have the title to it, everything is legal with me, and then I say कि आप खरीदो, it is a legal transaction. Sale of good के अंदर legal transaction है. आपको मैं कोई services दे रहा हूँ तो वो legal transaction है. When you go for this kind of a transaction, then you enter into a lawful contract. Okay, then it is known as contract which is lawful also. So agreement which is lawful, therefore enforceable by law, therefore agreement enforceable by law is contract. So आप देखोगे कितने क्लैरिटी से सिर्फ एक वर्ड के अंदर एग्रीमेंट enforceable by law में कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया और उसके अंदर के सारे टॉपिक्स भी कवर होते हैं. The thing is you have to open your mind. I don't know whether you guys are able to relate it or not, but let me tell you a story. किसी ने Merchant of Venice सुना होगा. Merchant of Venice is a very important, very famous book written by William Shakespeare, play written by William Shakespeare. Merchant of Venice में एक character है. Character is known as Shylock. Okay, he is a merchant, he is a Jew, he is a money lender. Okay. Then there is another character known as Antonio, who is also a merchant. A time comes when Antonio, for his friend Bassanio, has to borrow some money. So they go to Shylock, say कि यार कुछ पैसा दे दो, because you are a money lender, we will pay you with interest. मेरा fortune आ रहा है, ship is coming to me, and okay. What Shylock do is, because he is very envious of Antonio, वो उसको कहता है कि okay, let's enter into an agreement. That agreement says either you will pay me this certain amount which I am lending you plus interest within X time. The time of repayment is also stipulated over there. And if you are unable to do this, then I will be needing an ounce of flesh from your body. You see the kind of condition that is. This condition is an unlawful condition. यहाँ पे कंसेप्ट आता है voidable contract का. शाइलॉक की तरफ से वो कंडीशन थी कि भैया आप अगर पेमेंट नहीं कर पाओगे तो आप मेरे को आउंस ऑफ फ्लैश दोगे. फ्रॉम एंटोनियो की ठीक है मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपको दे दूंगा. दिस पार्ट की अगर नहीं आएगा एंटोनियो अगर पैसा तो आप मेरा आउंस ऑफ ब्लड आउंस ऑफ फ्लैश लोगे. दैट इज अ वॉइडेबल टर्म बिकॉज इट इज नॉट लॉफुल फॉर Shylock as well as not possible for Antonio to give a pound of flesh and then live properly. अब होता क्या है, when you go down the line in the story, एंटोनियो का कंसाइनमेंट टाइम पे नहीं आता and then he is unable to pay the debt on time. So the matter goes to the court. कोर्ट में बात होती है. Portia is another character. She comes as a lawyer and says, okay, you want an ounce of flesh, you take an ounce of flesh, but not a drop of blood. ये आपको चाहिए ना,
आपकी कंडीशन ये थी शैलोक कि आप अगर ये पेमेंट नहीं कर पाते तो आप आउंस ऑफ फ्लैश लोगे, बट वाइल टेकिंग आउंस ऑफ फ्लैश यू हैव टू बी वेरी सर्टेन कि ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं आना चाहिए। कल हमने बात की थी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की पीनल प्रोविजंस में, इस वहां से स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की थ्योरी को भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो लिखा है ना उसी को फॉलो करोगे। तो द स्टोरी of Merchant of Venice is is a drama, is a play, but you can see the fine principle of contracts and law in it, कि कोई भी अननेसेसरी चीज होगी, कोई भी अननेसेसरी एक्ट होगा, कोई भी अननेसेसरी अगर आपको कंडीशंस होगी, अनलॉफुल कंडीशंस होगी, तो दे कैनॉट बी ट्रीटेड एज अ then the contract cannot be, agreement cannot be treated as a lawful contract. Okay, now going to Can फिर I अभी ask हमने a question in between? sure please. Hindu Marriage Act and contract somewhere relate to each other, like in the section 5 and 12, it relates to mental capacity. So it's also contract. When it comes to Clause Hindu 2 of Marriage Act, section 5. Clause 2 of section 5. I know you are talking about consent. Consent भी होती है वहां पे, both the capacity of the parties party. agree for it. Yes, let me come to it. When you come to Hindu Marriage Act, हमारे यहाँ पे marriage is a sacrament. We consider marriage की बहुत sacred है. But when you go to Muslim Act, Muslim law, personal law, वहां पे marriage is a contract. So yes, you can relate it to it, but let me be very specific. हमारे यहाँ पे हम शादी को contract नहीं मानते. So relating to it and to a contract can cause a lot of stir into the environment कि नहीं यार हमारे यहाँ तो शादी को contract ही मानते. But it is a contractual transaction. We consider it as a sacrament कि 7 जन्मों है, सप्तपदी सब कुछ. Muslim law में उसको contract ही मानते हैं कि शादी is a contract. So yes, you can relate it to Muslim law, but not to हिंदू लॉ. तो वो डिफरेंस है पर्सनल लॉ के बीच में. जैसे कल हमने बात की थी, इंटरप्रेट करने के लिए किसी भी लॉ को यू हैव टू गो टू द जेनेसिस. हमारे पर्सनल लॉ का जेनेसिस है फैमिली मोटिव, उनके पर्सनल लॉ का जेनेसिस वो नहीं है. तो जेनेसिस के बेसिस पे उसका इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर आई थिंक आई सेटिस्फाइड यू ऑन दिस. देयरफॉर कंसेंट का प्रोविजन तो है, क्योंकि शादी दो कंसेंचुअल एडल्ट्स के बीच में ही हो सकती है. बट हिंदू लॉ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं आप डाल सकते. बट यस, एज फार एज मुस्लिम लॉ, क्योंकि अच्छा दूसरा क्यों नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट में एक और चीज की इंपॉर्टेंस होती है, सेक्शन 2D, कंसिडरेशन. देयर हैज टू बी ए कंसिडरेशन फॉर इट. हिंदू लॉ में कंसिडरेशन नहीं होता, मुस्लिम लॉ में मेहर के नाम पे कंसिडरेशन होता है. सो यस, हिंदू लॉ इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट. वहां पे एग्रीमेंट वॉइड होता है, क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं होता तो एग्रीमेंट बनता ही नहीं है. फॉर मेकिंग एन एग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर में कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस की भी कुछ कंसिडरेशन होती है. वो कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट ही नहीं क्रिएट होता. एग्रीड. नाउ गोइंग फर्दर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब जब आपने सेक्शन 2 पढ़ोगे, व्हेन यू विल बी लुकिंग आफ्टर सेक्शन 2, नाउ लुक एट इन द पर्सपेक्टिव कि जो हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस में प्रिंसिपल्स पढ़े, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ अब ये बात आई कि भाई फॉर व्हाट गुड रीजंस आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया, उसको कैसे, देयर इज अ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपको उसको निभाना पड़ेगा. यू कैन नॉट बैक आउट फ्रॉम इट. ओके. द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल विल आल्सो अप्लाई कि जब एक पार्ट आपने एक अच्छा, while reading contract, हम यहाँ पे हालांकि पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट आई विल बी टेकिंग यू टू पॉइंट टू थ्योरीज ऑफ एस्टोपल, सॉरी, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, indemnity, guarantee, Baylor-Bailey concept, agent and principal concept. So more or less, I will try to cover all these topics in a very short, crux manner. I will be also discussing with you the theory of consent and contingent contracts. Okay. So now, till now, what we have read is we have discussed about offer, we have discussed about acceptance, we have discussed now offer में क्या होता है कोई. Now we will be discussing about concept of promisor and promisee. I say that I will be buying something from you. You say that you will be selling something to me on this and this price. While making an offer to buy, I am promising something to you. While giving me a considering amount to sell that very particular or accepting my offer, you are making a promise to me.
So while from my side I am the promiser because I am making a promise of buying something from you, from your side you are making a promise of selling me something on a given consideration, and I becomes the promisee. So you have to look for it also. It is also important, जब आप इस थ्योरी को पढ़ते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दैट इज कंसेंट एंड कम्युनिकेशन. मैंने ऑफर कर दिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे ही नहीं पता चला. मैंने ऑफर कर दिया लेकिन तुम्हें नहीं पता चला. तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन की प्रिंसिपल्स कैसे रिएक्ट करते हैं. फॉर एन एग्जांपल, इफ आई हैव डिक्लेयर मेड एन ऑफर, द डे आई मेड एन ऑफर एंड मेक इट पब्लिक, और सपोजिटली मुझे सिर्फ आपको ऑफर करना है, सो आई राइट अ लेटर टू यू सेइंग आई वांट टू सेल माय कार एंड आई पोस्ट इट. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहता है कि उस दिन मेरी तरफ से ऑफर रिलीज हो गया. एक्सेप्टेंस में जिस टाइम आपने उसको एक्सेप्ट करके और मुझे लेटर भेज दिया, प्रिजम्पशन कहता है कि ऑफर एक्सेप्ट भी हो गया. ये क्यों होता है? बहुत बार ऐसे लगता है कि थॉट में कम इनटू माइंड कि यार जब मेरे भेजने से आपको मिलना जरूरी नहीं है ना, और आपके भेजने से मुझे मिलना जरूरी नहीं है, तो जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं उसको कैसे मानूंगा. इसमें एक प्रिजम्पशन भी है इंडियन एविडेंस एक्ट में. जब आप किसी चीज को पोस्टल ऑर्डर या मेल से, या आज की डेट में हम व्हाट्सएप को भी ब्लू टिक मानते हैं, जब उससे सेंड कर दिया, इट मींस कि वो मेरे हाथ से निकल गया. आई एम एग्रीड टू दैट वेरी कंडीशन, सो नाउ दिस विल रीच टू यू. अब उसका प्रिजम्पशन ये माना जाता है कि हाँ वो आपको मिल गया है, अनटिल अदरवाइज आई कम टू कोर्ट एंड से कि सर मुझे मिला ही नहीं, एंड दिस इज द फैक्चुअल कंडीशन एंड आई प्रूव इट. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहता है पोस्टल में जैसे आपने डाला, इट इज रिसीव्ड बिकॉज इट विल बी रिसीव्ड डे और टुडे बाय द अदर पार्टी. अब आपने क्या डाला, कैसे, क्या कागज में लिख के भेजा, वो सब मेरे पास आएगा तब मुझे पता लगेगा. बट अब मुझे वेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई आपने भेजा है, और अगर आपका लेटर मुझे मिलता है देन आई हैव टू डू make sure that I fulfill my obligation of the offer and you will be fulfilling your obligation of the acceptance. Agreed? तो अब जो कंसेप्ट अगर कभी लाइफ में ये लगा हो कि यार मेरे को तो मिला ही नहीं, हाउ इट इज एन एक्सेप्टेबल थिंग, then when a dispute is raised, आपको कोर्ट में जाके ये प्रूव करना पड़ेगा थ्रू द कॉन्ट्ररी प्रिजम्पशन कि सर आई हैव नॉट रिसीव्ड इट. until you prove it, it will be deemed to be accepted. The presumption of law is so. Going further, let's discuss about void contracts. Any contract, the concept, the definition of void contract is given in section 2G. 2G says that any contract which is unlawful or not enforceable by law is a void contract. ठीक है. अब जब आप void contract की बात करते हो तो कौन सा हो गया? किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया void. ओके, क्योंकि वो अनलॉफुल है, उसको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता. voidable contract कहाँ पे हो गया? जहां पे now you come to voidable contract that is given in section 2I. what are voidable contracts? जहां पे मेरी तरफ से जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल है, बट फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल और कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ. तो ऐसी कंडीशंस में वेयर वन पार्ट इज लॉफुल, अनदर पार्ट इज अनलॉफुल, और वेयर वन पार्ट इज कैन बी इन्फोर्स्ड लॉफुली एंड वन पार्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड लॉफुली. फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको कोई चीज ऑफर कर रहा हूँ, मेरी तरफ से वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, but when it comes, for an example, what should I say, I am sitting in Amsterdam, okay, I make an offer of selling you weed. मैं weed बेच रहा हूँ, ठीक है. एम्स्टरडेम में क्योंकि weed लीगल है तो वहां से मैं बेच सकता हूँ, मेरे लिए वो लॉफुल है. बट इंडिया में weed का कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, अनलॉफुल है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है, क्योंकि वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, एक्साइज एक्ट के अंदर इट्स प्रोहिबिटेड. तो जब आप प्रोहिबिटेड की बात करते हो तो आई कैन नॉट पे इट फॉर मी दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. तो
मैं उसका पेमेंट भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. So इंडिया में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, but when I go to Amsterdam, that is a lawful contract. Now coming back to what is, let's say what voidable contract is, आप किसी भी ऐसे कंडीशन को ले लो जिसको आप लॉफुली इन्फोर्स नहीं कर सकते लेकिन सामने वाला लॉफुली इन्फोर्स कर सकता है, that becomes an voidable contract. Now इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी आता है. डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है, आई एम वेरी सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग. सेवरेबिलिटी का डॉक्ट्राइन कहता है जो अच्छा है, जो लॉफुल है उसको रखो, और जो अनलॉफुल है उसको सीवर कर दो, सेपरेट कर दो, और अब देखो वेदर यू कैन हैव ए कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. ओके, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी. ये तो हो गए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. अब एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी बहुत सारे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. अब कॉन्ट्रैक्ट्स के नेचर होते हैं, उनमें से एक नेचर होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट whose execution or completion is dependent upon a contingency or a future event. तो वो एग्रीमेंट का फोर्स में आएगा जब एक कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा. अगर मैं आपको कहता हूं कि एक्स को वाई से शादी होगी तभी मैं उसको 50,000 रुपए दूंगा. अब ये कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में कब आएगा? जब एक्स वाई से शादी करेगा तभी उसको 50,000 रुपए मिलेंगे. अब एक्स के शादी करने से वाई पहले ही वाई किसी और से शादी कर लेती है तो अब इसको 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कंटिजेंसी पे बेस्ड था. फॉर एन एग्जांपल, एक्स कहता है कि वाई को कि मैं आप मुझे ये जमीन बेच दो. वो जमीन वाई की जेड के पास, जेड के टाइटल पे है. वाई जो है वो जेड का बेटा है. तो जेड जब जाएगा, मतलब व्हेन जेड विल डाई द प्रॉपर्टी विल कम टू वाई एंड देन वाई कैन सेल इट टू एक्स. जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि जब जेड की डेथ होगी, कंटिजेंसी की जेड मरे, तब वो प्रॉपर्टी वाई के पास आएगी और वाई एक्स को बेचेगा. तो इस तरीके से कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को यू गाइस कैन हैव अ लुक इनटू. दिस इज द कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. अब आता है एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन. उससे पहले वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट अ वर्ड नोन एज कंसेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ये आपको आईपीसी में भी मिलेगा, ये आपको सीपीसीपी में भी मिलेगा. इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि दुनिया में सब कुछ इसके आगे घूम रहा है. पूरे लीगल सिस्टम में सब कुछ कंसेंट है. अगर तुमने किसी चीज की कंसेंट दे दी है देन यू आर ए पार्टी टू दैट. अब कंसेंट कैसी? फ्री कंसेंट. कंसेंट हैज टू बी अ फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट व्हेन आई से इट, तो आपको देखना पड़ेगा फ्री कंसेंट का मतलब है जब कोई भी कंसेंट किसी कोअर्जन, किसी प्रेशर, किसी भी फ्रॉडुलेंट वे से ड्रंकन स्टेट में, अनसाउंड माइंड की स्थिति में नहीं दी गई है. जब आप बिल्कुल अपनी फ्री विल से साउंड माइंडेडनेस के साथ कंसेंट देते हैं, वही कंसेंट इज अ कंसेंट. अदरवाइज कोई भी कंसेंट आपकी वैल्यू नहीं रखती है. तो एग्रीमेंट में जब हमने बात की थी, वन पार्टी ऑफर, अदर पार्टी एक्सेप्ट, तो यहाँ पे दे हैव टू विलफुली गिव अ कंसेंट. प्रॉपर कंसेंट होती है कि कंसेंट ऑफ ऑफर, कि हाँ मैं फ्री विल से ये ऑफर कर रहा हूँ, और सेकंड कहता है हाँ मैं फ्री विल से ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ. तो ये बन जाती है, तब बनती है कंसेंट की यस एवरीवन इज हैविंग अ फ्री कंसेंट एंड देयरफॉर द थ्योरी ऑफ कंसेंट. कंसेंट के लिए आपको अनसाउंड माइंड के नहीं हो सकते हो, आप ड्रंक नहीं हो सकते हो व्हाइल गिविंग इट इन कंसेंट. सपोजिटली एक बहुत सिंपल अपने पिक्चरों में भी एग्जांपल देखते हैं. जमीन के कागज बंदूक रख के कनपट्टी पे वी हैव गॉट इट साइन. वो कंसेंट अंडर कोहर्जन है, वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं है. ड्रंकन स्टेट में दारू पिला के या नशे की हालत में इन अ वेरी नॉट प्रॉपर माइंड अगर आप साइन लेते हो, अंगूठा लेते हो. I don't know whether you guys have seen Gulabo Sitabo or not. A very new movie.
उसमें एक पर्टिकुलर स्क्रीन प्ले है जहाँ पे अमिताभ बच्चन जाता है और ट्राइज टू टेक थंब इम्प्रेशन ऑफ हिज वाइफ व्हेन व्हाइल शी इज asleep. दैट इज नॉट कंसेंट. आपने थंब इम्प्रेशन ले लिया लेकिन वो व्हाइल शी वाज asleep था, शी वाज नॉट हैविंग अ कंसेंट ऑन इट. देयरफॉर वो जो भी डॉक्यूमेंट है दैट वाज नॉट अ गुड डॉक्यूमेंट, दैट वाज नॉट अ राइट डॉक्यूमेंट. ओके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन नहीं सकता. देयरफॉर नाउ यू हैव अ थ्योरी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, बेलर बेली. मैं आपको बहुत शॉर्ट में चीज समझाता हूँ. एजेंट प्रिंसिपल है, मैं अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हूँ, आई एम एन एम्प्लॉय. एजेंसी का कंसेप्ट ये है, मैंने अपने नीचे 4-5 अपने एम्प्लॉइज रख रखे हैं who will work for me, who will represent me at different forums, different places. तो मैं प्रिंसिपल हूँ, they are my agent, they are working on my behalf, therefore they are my agent. अब राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, किसकी होती है, किस तरीके से होती है, उस चीज को देखने के लिए we have to go in detail. therefore एजेंट और प्रिंसिपल के बाद कंसेप्ट आता है बेलर और बेली का. बहुत सिंपल वर्ड्स है. बेलर और बेली क्या होता है? देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बेलमेंट. बेलमेंट होता है जब मैं आपको, व्हेन आई गिव समथिंग टू यू अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस कि आप इसको ऐसे ही यूज करोगे और जब आपका यूज खत्म हो जाएगा तब आप मुझे रिटर्न कर दोगे. द कंसेप्ट ऑफ रिटर्निंग और डिस्पोजिंग इट अकॉर्डिंग टू माय विल इज देयर, देन द कंसेप्ट ऑफ बेलमेंट कम्स इनटू पिक्चर. बेलमेंट हुआ है व्हेन आई गिव यू अ गुड to use it and then dispose it or return to me according to my directions, then it is bailment. The person, then I become a bailer and you become a bailee. मैंने आपको चीज दी तो मैं बेलर, और आप मेरी चीज को यूटिलाइज करोगे और उसके बाद में उसका डिस्पोजल मेरे अकॉर्डिंगली करोगे, यू बिकम्स अ बेली. इसके भी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी विल बी डिस्कसिंग लेटर, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम ऑल्सो. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. पर बात यह है कि एक बेसिक आइडिया आपको देता हूँ. हर बेलर बेली का, जैसे मैंने कहा, टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हो सकती है. आपके एग्रीमेंट में क्या टर्म्स हैं उसके ऊपर इसके राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन होंगी. हालांकि दे आर अ लॉट ऑफ जनरल प्रिंसिपल, बट यस द बेसिक प्रिंसिपल राइजेस कि जो एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस है वही इसको डिफाइन करेंगे. देन यू हैव द कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. टू मेक द लॉस गुड. Why do you say to make the loss? आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक इंडेमनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ वो कहता है अगर मेरी वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से कभी भी आपको कोई नुकसान होगा तो वो एग्रीमेंट ही इसी नेचर का है कि if something wrong happens to you, then the entire agreement will, then we will be indemnifying you. मतलब जो भी आपका लॉस हुआ है उसको हम ठीक करा के देंगे आपको. लॉस लिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकते हैं. देयरफॉर हम आपको सब कुछ ठीक करके देंगे. ओके, देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ गारंटी. गारंटी का मतलब ये है कि बहुत वर्ड अपने आप में बहुत सिंपल है. गारंटी इन इटसेल्फ सेज दैट आई टेक ए गारंटी ऑफ एन एक्शन ऑफ सपोजेडली भुवनेश, कि भुवनेश आपको रिपेमेंट करेगा, इसकी गारंटी मेरी. अब भुवनेश ने नहीं दिया तो वो जो रिपेमेंट का अमाउंट है सिर्फ मेरी लाइबिलिटी होती है, मैं आपका लॉस कवर नहीं कर रहा हूँ. लॉस तो आपका इंडेमनिटी ही कवर करेगा. मैं आपको सिर्फ जो पेमेंट भुवनेश ने किया है तो नहीं किया है रिपेमेंट, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है. आई टेक गारंटी, देयरफॉर आई हैव टू पे इट बैक. बैंक में भी इसी तरीके से गारंटर्स लेते हैं कि अगर वो नहीं पे कर पाए तो फिर मैं पे करूंगा. दिस इज हाउ गारंटर्स डेफिनेशन इज. नाउ ये जो थ्योरीज हैं इन्हीं के बेसिस पे अब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप देखोगे उसमें 73 टू इफ आई एम नॉट रॉन्ग 123 सेक्शन को रिपील करके सेल ऑफ गुड एक्ट बना दिया. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तब पूरा होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब आप सेल ऑफ गुड भी पढ़ लेते हो. सेल ऑफ गुड्स, फिर आप पार्टनरशिप भी पढ़ लेते हो, फिर आप उसके बाद में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी पढ़ लेते हो. जब आप ये सब चारों एक्ट पढ़ लोगे तब आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपका वैसे ही पूरा हो जाएगा. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब आपको क्लैरिटी देगा, क्योंकि आप मानो आपका डे टू डे लाइफ से लेके इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स तब सिर्फ इस कॉन्ट्रेक्चुअल रिजीम के अंदर ही आते हैं. सो व्हेन यू डिसाइड टू बिकम अ मजिस्ट्रेट और यू आर डिसाइडिंग टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि व्हाइल यू आर बी सिटिंग ओवर देयर आप सिविल लॉ में मैक्सिमम केसेस कॉन्ट्रैक्ट के आएंगे. मैक्सिमम कंज्यूमर में बैठोगे तो मैक्सिमम कंज्यूम
वहां भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, कंज्यूमर में दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, दो दे हैव अ सेपरेट रिजीम ताकि डिस्पोजल जल्दी हो, अदरवाइज सब कुछ वही होता है। ठीक है, okay, so I am done for this session. Anyone who has any questions out of any of you, they are free to ask me. They can open a mic. We have another 5 minutes for it. Any queries? Chats. Okay, nothing. Okay, then I am closing it out. Okay, everyone, please try to share and subscribe our channel, Law Awareness Society. It's Aniket Vyas signing out. Tomorrow we will have a session on specific relief act. Thank you. Bye.